Your Lordship, respected teachers, staff members, ladies and gentlemen, and my dear girls, it is always very difficult to articulate with the principal standing right behind you. But at the onset, I would like to congratulate all the girls, the teachers who put up such a wonderful performance tonight. I think that after watching all of you, my feeling to Sister Superior was that most of you can give actors on TV a run for their money. I think all of us should clap together for this wonderful performance, this wonderful effort put up by all of you. I was extremely glad while performers were being introduced to hear 2-3 Smritis being mentioned. When I saw Ruchitra Malhotra's bio being presented to all of you, I felt maybe we Malhotras have something special in us. But then I thought, when I saw Divya who's sitting right behind me, that yes, the school did manage to produce a few of us who are highlighted in the media. But I feel that those auxilians who need to be today cherished and applauded are the ladies who decided to give back to the school that made us what we are. So the auxilians who became teachers, a special thank you and congratulations to all of you. I did read here tonight that Richa Sharma is the new political science teacher. I think I've met Tina Bhatia somewhere in my years in school. But Richa, I'm sure that you must be a great political science teacher, but I would like to remember and pay homage to my political science teacher, Mrs. Datta, who came up to me and hugged me and said, at least you took my lessons seriously. Ladies and gentlemen, I am normally supposed to be a good orator, but words failed me tonight. The minute I got a call from Mrs. Kohli and Mrs. Rose, I braved the invitation and I was smiling and laughing, and the minute I stepped in, I have been crying. I told myself that I normally do this on television with a little help from glycerine. I think His Lordship himself was a bit surprised to see me crying when I sat next to him. With no offense meant to you, sir, it's all my fault. I called my father this evening when I landed because I somehow felt it was completely unbelievable that I was made guest of honor in my own school. And I said, "Aap kahan hai?" He said, "Connaught Place mein hu, kya hua?" Normally that's how fathers respond. I said, "Aap jaldi school aiye." He said, "मैं अभी आया." He put the phone down. He called me in 2 minutes. He said, "Didn't you pass out?" School क्यों आओ? I said, "नहीं आप आइए. आज एक function है school में." I insisted and I put the phone down and he came running. Normally my father dreaded a school phone call. He thought, तुमने कुछ ना कुछ तो किया है श्रुति, मैं नहीं जाना चाहता तुम्हारे school. Normally he used to be consoled by Mr. and Mrs. Ratan, who told him, पढ़ाई लिखाई में अगर गलती कर दी हो, कम से कम स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी जिंदगी में. And when I walked in today, Mr. Ratan told me, बेटा याद रखना, नेता बनाया सबसे पहले जिंदगी में तो मैंने बनाया, स्पोर्ट्स कैप्टन का बैज मैंने लिया था. लेकिन मेरी निगाहें ढूंढ रही थी अनीता शर्मा जी को, जो हमारी बायोलॉजी टीचर थी. हाँ, पीछे से किसी ने वो बोला. शायद उन्होंने भी वही भुगता होगा जो मैंने भुगता. डायग्राम अगर नीट ना हो, उसके साथ हेडिंग और सब हेडिंग अगर अच्छी तरह से लेजिबल राइटिंग में ना हो, यहाँ पर लड़कियां से सर हिला रही हैं. तो अनीता जी कम से कम जब मैं स्कूल में थी तब कान खींच के थप्पड़ तो मारी देती थी. अब जमाना बदल गया है. टीचर्स को सिखाया जाता है कि थोड़ा बहुत रिस्ट्रेन करो, लेकिन आज इस मंच से अनीता जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. जिंदगी में ऑर्डर डिसिप्लिन अगर सीखा हो मैंने किसी से तो आपसे सीखा है. आज उसी चाटे का कमाल है कि मैं स्कूल में लौटी. मेरी मासी और मासा जी बेचारे बैठे हैं कब से ठंड में, और आज उन्हें इस बात की खुशी है कि मैंने स्कूल में कोई गड़बड़ नहीं की है. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कोई पॉपुलर स्टूडेंट नहीं थी. फोटोग्राफ्स देखकर आप जान गए होंगे, जरूर पतली थी उस जमाने में, लेकिन दिखने में बहुत खराब थी.
और लोग अक्सर ये चिंता करते थे मेरे परिवार में कि लड़की ना ध्यान देती है पढ़ाई में, ये लड़की ना किसी कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेती है, हाँ थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेल लेती है, लेकिन बास्केटबॉल खेलकर आज तक किसने जीवन में कोई बन पाया है या किसने जीवन में कुछ कमाया है। मेरे माता पिता ने चाहे मुझ में कितनी कमियां क्यों ना हो, एक विश्वास दिखाया। मेरी मासी, मेरे मासा ने हमेशा कहा कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, लेकिन आगे से कोशिश करना कि वो गलती दोबारा तुम दोहराओ मत। और आज मैं उन माता पिताओं से कहना चाहती हूँ जिनके बच्चे शायद ना पॉपुलर हैं, ना स्पेशल टैलेंट है उनमें, जिंदगी में उनमें बनने में, उन्हें बनाने में अगर एक चीज काम आएगी तो वो आपका विश्वास, आपका प्यार है। और जब तक आप उनमें विश्वास करते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो जीवन में खास बन सकते हैं। मेरा खास धन्यवाद मेरी टीचर्स, सिस्टर्स को, जिनमें से एक सिस्टर रोज आज यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने कई बार मुझे ठीक करने के लिए मुझे डांटा, फटकारा, कई बार अंधेरे कोनों में मेरा हाथ थामा और कहा कि चुपचाप मत बैठी रहो, कुछ करो। और कुछ करो की ये भावना मुझे यहाँ तक ले आई है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मिसेस कोहली ने अपना बड़प्पन दिखाकर कहा कि मुझे कोई अवार्ड मिलना चाहिए, आज मिल रहा है शायद बंबई में। मिसेस रोज को जब मैंने फोन करके कहा कि मेरी दुविधा है कि मैं कहाँ जाऊं, तो मिसेस रोज ने बड़ी जेंटली मुझे रिमाइंड किया कि अब तुम स्कूल में नहीं हो स्मृति, जिंदगी के डिसीजन अब तुम्हें खुद लेना है। आज मैं कहना चाहूंगी कि इस शाम को आप सबके बीच में बिताना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड है। मैं आशा करती हूँ कि भगवान मुझ जैसे बच्चों को, मुझ जैसे स्टूडेंट्स को इतना सम्मान जीवन में जरूर दे। मैं जानती हूँ कि मेरी स्पीच थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन when emotions are riding high, words almost get disjointed. Ladies and gentlemen, before coming here, I asked my daughter that why don't you give me some quote? मैं अपनी स्पीच में लोगों को बोलकर इम्प्रेस करूंगी। मेरी बेटी ने बहुत सारे कोटेशन ढूंढे, उसमें से एक उसने मुझे भेजा ईमेल पर जो अभी अभी मुझे मिला है। उस कोटेशन में लिखा था कि जिंदगी में एक्सीलेंस और गोल्स को तो सभी परस्यू करते हैं, लेकिन जीवन में विशेष वो होता है कि परस्यूट ऑफ उस गोल में आप किस किस्म के इंसान बनते हैं। So girls, you pursue excellence, you pursue all your goals. But remember, what matters at the end of the day is what kind of human being you become at the end of those pursuits and at the end of those journeys. अब नेताओं की बुरी आदत है कि माइक मिल जाता है तो चुप नहीं होते हैं। इसलिए मैं वाणी को विराम देने से पहले यहाँ पर जितनी स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब हमारे फंक्शन में कोई चीफ गेस्ट आता था और भाषण देता था तो हम सोचते थे कि बेटा हम स्कूल में फंसे हैं, तुम भाषण दे रहे हो हमें बाहर निकलने दो, जिंदगी कितनी सुहानी है, हमें भी एक्सपीरियंस करना है। और जितने लोग इस मंच से भाषण देते थे वो हमेशा स्टूडेंट से एक ही बात कहते थे कि जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे तब तुम सोचोगे स्कूल के वो दिन ही अच्छे थे भैया, बाहर क्यों निकले हो। हाँ, कोई महाशय हंस रहे हैं, शायद उनका भी मेरे जैसा ही अनुभव है। School years are the best of your life, but as a student who has passed through this glorious institution, I have only one request. I have spent many a days without popular support. I have spent many a days in this compound as a geek, as a nerd. All I want to tell you girls is that when you look at a girl sitting alone during lunch break, walk up to her and just say one little hi. And trust me, that girl will remember your kindness for the rest of her life. It is the act of kindness, it is the act of forgiveness which makes us better human beings. Ladies and gentlemen, आज इस सम्मान के लिए, आज इतने प्यार के लिए और आपके निरंतर आशीर्वाद के लिए मैं एक बार फिर मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।